بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مظلوم کو انصاف دینے اور حق فیصلہ کرنے والے کھڑک سنگھ پڑھے لکھے تو تھے نہیں۔ انہوں نے وائس رائے سے پوچھا کہ سیشن جج کا تعلیم سے کیا کام ہے، انہوں نے بچوں کو پڑھانا تھوڑی ہے۔ اس کا ایسا خوف بیٹھا کہ اس کے بعد کھڑک سنگھ کے علاقے میں دوبارہ قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ اگر موجودہ دور میں بھی کھڑک سنگھ آ جائے تو شاید عوام کا عدالتوں پر اعتماد پھر سے قائم ہو جائے۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ بچپن میں جب سکول میں زبان دانی کے مقابلے میں کچا پپیتا پکا پپیتا ازبر ہو جاتا تھا تو اگلے مرحلے میں اس شعر کو پڑھنے کا ٹاسک ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اکثر افراد اس شعر سے نہ صرف واقف ہوں گے بلکہ اکثر افراد کو یہ ازبر بھی ہوگا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک سبق آموز قصہ بھی پوشیدہ ہے۔ آج ہم آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ بھی یہ دعا کریں گے کہ کاش آج کے دور میں بھی کوئی کھڑک سنگھ پیدا ہو جائے۔ کھڑک سنگھ کون تھا؟ ویسے تو تاریخ میں کئی کھڑک سنگھ گزرے ہیں جن میں سے ایک سکھ راجا تھے جبکہ ایک افسانہ نگار تھے، مگر یہ کھڑک سنگھ کا شعر جسٹس کھڑک سنگھ آف پٹیالہ کے حوالے سے مشہور تھا۔ کھڑک سنگھ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کا جب ہندوستان پر قبضہ تھا اس وقت پٹیالہ کے نواب ان کے بھانجے تھے۔ کھڑک سنگھ خود بھی ایک بڑی جاگیر کے مالک تھے جس وجہ سے اکثر لوگوں کی پنچایت وغیرہ میں فیصلہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھڑک سنگھ کے علم میں یہ بات آئی کہ پٹیالہ میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے تو ان کو شوق ستانے لگا کہ کیوں نہ وہ اس کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں سیشن جج کی بھرتی انگریز وائس رائے کیا کرتے تھے۔ کھڑک سنگھ نے اپنے بھانجے سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ ماموں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے راجا نے وائس رائے کے نام ایک خط لکھ دیا اور اسے کھڑک سنگھ کے حوالے کر دیا۔ وائس رائے کے پاس جب کھڑک سنگھ خط لے کر پہنچے تو وائس رائے نے ان سے ان کا نام پوچھنے کے بعد ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ کھڑک سنگھ پڑھے لکھے تو تھے نہیں مگر اس سوال سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے وائس رائے سے پوچھا کہ سیشن جج کا تعلیم سے کیا کام ہے، انہوں نے بچوں کو پڑھانا تھوڑی ہے جو ان سے ان کی تعلیم پوچھی جا رہی ہے۔ وائس رائے نے ان سے دریافت کیا کہ پھر وہ غلط اور صحیح کو کیسے پہچانیں گے تو اس کے جواب میں کھڑک سنگھ کا کہنا تھا کہ ساری عمر وہ پنچایت کے فیصلے کرتے رہے ہیں، ان کو اچھے اور برے میں فرق بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ خیر بیزار ہو کر وائس رائے نے ان کو پٹیالہ کا جج بنا کر بھجوا دیا اور سوچا کہ راجا جانے اور اس کا ماموں جانے۔ جب پہلے دن کھڑک سنگھ عدالت میں پہنچے تو ان کے سامنے ایک عورت کے شوہر کے قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ 4 ملزمان کو بھی پیش کیا گیا جن پر الزام تھا کہ انہوں نے اس عورت کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ کھڑک سنگھ کے سامنے پولیس نے کیس کی فائل پیش کی تو کھڑک سنگھ نے عورت سے کیس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے ملزمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر کے قتل کا معاملہ اس کے سامنے ہی پیش آیا اور ان ملزموں میں سے ایک نے ڈنڈے سے، دوسرے نے چاقو سے، تیسرے نے کسی اور چیز سے، چوتھے نے نوکدار نیزے سے اس کے شوہر کو مار مار کر ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ لاش پہچاننے کے قابل تک نہ رہی۔ نہ کہ صرف جسم بلکہ چہرے، بازو، ٹانگیں، ہر چیز کو توڑ دیا گیا۔ جب کھڑک سنگھ نے ملزمان سے اس بارے میں دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک کے پاس بیلچا، ایک کے پاس کدال اور 2 کے پاس گھاس کاٹنے والی درانتی تھی اور یہ کہ یہ عورت غلط بیانی کر رہی ہے۔ کھڑک سنگھ نے بات کو سمیٹتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی اس عورت کا شوہر مر گیا ہے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ کھڑک سنگھ جب فیصلہ لکھنے لگے تو اسی دوران کالے کوٹ میں وکیل سامنے آیا جو ان ملزمان کی جانب سے وکیل صفائی تھا اور اس نے کھڑک سنگھ سے درخواست کی کہ یہ کیس ان لوگوں کے مابین زمین کے جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے اور مقتول کے نام پر زمین نہیں تھی، زمین تو ملزمان کے نام تھی اور مقتول ان کی زمین پر جھگڑے کی نیت سے آیا تھا۔ وکیل کی صفائی کے بارے میں کھڑک سنگھ نے پولیس سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو پولیس والے نے بتایا کہ یہ ملزمان کی جانب سے وکیل ہے۔ کھڑک سنگھ نے کہا کہ یعنی یہ بھی انہی کا ساتھی ہوا نا۔ کارروائی کے بعد اسی وقت کھڑک سنگھ نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح ان 4 افراد کے ساتھ اس وکیل کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ یہ سن کر مقامی وکیلوں نے احتجاج کیا اور اس فیصلے کو غلط قرار دیا۔ کچھ وکیلوں نے احتجاج کیا، شور مچایا۔ جب کھڑک سنگھ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو
इन्होंने वकीलों के चंद नुमाइंदगान से बात की और कहा कि जब कोई भी शख्स कहीं पर ग्रुप की सूरत में या दो आदमी की सूरत में चोरी करता है, एक आदमी घर के अंदर होता है और दूसरा घर के बाहर, वो इसे हिदायत जारी करता है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, बाहर की क्या आबो हवा है। इस बाहर वाले चोर की मदद से ही अंदर वाला चोर चोरी कर पाता है। लिहाजा अगर हाथों से सामान लूटने, जेवरात चुराने या कोई भी मुजरमाना जुर्म करेगा तो जाहिर है कि इसके साथ खड़ा बाहर शख्स भी बराबर का मुजरिम है। जब एक शख्स जानता है कि इस शख्स ने कोई जुर्म किया है, कत्ल किया है, और इसके बावजूद आप पैसों की खातिर इसको मुजरिम से नामहरम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें वकील भी बराबर का शरीक हुआ, क्योंकि ये इसके जुर्म से आगाह है। मुजरिम के जुर्म से आगाह होने के बावजूद इसे बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी तवानाइयां जाया करना जुर्म करने में हिस्सा डालने के मुतरादिफ है। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि जो मजबूर है, जो मजलूम है, इसकी आवाज बनकर अदालत की आंखों में धूल झोंकने की बजाय सच सामने करें, ताकि जराइम परवान न चढ़े और मुजरिमों को इनके किए गए अमल की सजा दी जाए। खड़ग सिंह के अल्फाजों के चुनाव और इनके लबो लहजा, इनकी रोबदार आवाज सुनकर वकील खामोश हो गए। इन्हें अपने इस मुजरमाना इकदाम का एहसास हुआ और खामोशी से तमाम वकील वापस चले गए। लेकिन ये चहमगोइयां जरूर हुई कि एक अनपढ़ शख्स इस कदर दलेर और फैसला करने की सलाहियत से लेस कैसे हो सकता है। खड़ग सिंह ने ऐसा तारीखी फैसला दिया कि जिसमें मुलजमान के साथ साथ इनके वकील को भी फांसी दे दी गई। इस फैसले ने खड़ग सिंह के इंसाफ और दबदबे की धूम मचा दी। इसका ऐसा खौफ बैठा कि इसके बाद खड़ग सिंह के इलाके में दोबारा कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। यहाँ तक कि फौरी इंसाफ के सबब दूर दूर से लोग खड़ग सिंह की अदालत में इंसाफ के लिए आने लगे। लोग पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता काजियों, जजों को छोड़कर खड़ग सिंह के पास मुकदमा लड़ने के लिए आते और बजाय महीनों या सालों के घंटों और दिनों में अपने मुकदमे का हकीकी फैसला पाते। हत्ता के खड़ग सिंह ने अपने फैसलों की वजह से वाइसराय को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि खड़ग सिंह ने जो कहा था इसकी जुबान से निकला एक एक लफ्ज सच है कि मैंने कौन सा बच्चों को तालीम देनी है कि मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसी तरह एक शाम जब अदालत का वक्त खत्म हो गया तो खड़ग सिंह और दीगर अमला अपने अपने घरों को लौटने लगा तो एक किसान अदालत के अहाते में दाखिल हुआ और पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हमारी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा तुम कल आना। अचानक खड़ग सिंह की नजर जब इस गरीब पर पड़ी तो इसे अंदर बुलाया। पुलिस वालों से सारा माजरा पूछा तो किसान को अंदर बुलाया और पुलिस वालों से कहा कि काजी यानी जज लोगों की खिदमत के लिए बैठा है। लोगों को इंसाफ फराहम करना अदालत का काम और मेरा फर्ज है। जुर्म करने वाला जब वक्त नहीं देखता तो इंसाफ करने वाले को भी ये चाहिए कि वो अपनी चौखट पर आए, हर सवाली की फरियाद सुनकर इसे इंसाफ फराहम करे और फौरी मुकदमे की कार्रवाई का फैसला किया। किसान अदालत में खड़ग सिंह के सामने हाजिर हुआ और कहा, मेरा इंतहाई कीमती घोड़ा हमारे गांव के सरदार ने चोरी कर लिया है। रात को 4 बजे तक मैं अपने घोड़े के पास ही था। फिर सुबह मैं नाश्ता करने के लिए घर गया और कपड़े तब्दील करके वापस जब घोड़ा के लिए चारा लेकर गया तो वहां पर घोड़ा मौजूद ही नहीं था। खड़ग सिंह ने इस किसान की जाहिरी शक्ल सूरत देखी तो इन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि इस किसान का कोई घोड़ा होगा। फिर खड़ग सिंह ने इसे कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो इस किसान ने कहा कि नहीं। खड़ग सिंह ने फिर उसी वक्त इस कबीला के सरदार को बुलवाया जिस पर इल्जाम था कि इसने इस किसान का घोड़ा चोरी किया है। वो कबीले का सरदार खड़ग सिंह के सामने हाजिर हुआ तो फिर इन्होंने इस गरीब किसान से पूछा। इस किसान ने कहा कि यही है हमारे कबीले का सरदार और इसी ने मेरा कीमती घोड़ा चोरी किया है। खड़ग सिंह ने इस सरदार से कहा कि क्या यह सच है? इस सरदार ने कहा कि काजी साहब जी, ये झूठ बोल रहा है। इस किसान की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती तो ये घोड़ा को कहां से खिलाएगा? ये घोड़ा मेरा है। खड़ग सिंह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या कोई गवाह मौजूद है? तो इस सरदार ने कहा कि हाँ जी। फिर इस कबीला के 30 मर्द हजरात इस सरदार के हक में गवाही देने खड़ग सिंह की अदालत में हाजिर हुए और हर एक ने कसम उठाकर गवाही दी कि ये घोड़ा इस सरदार का है, जबकि ये किसान झूठ बोलता है और ये किसान तो बहुत ज्यादा गरीब है। इन 30 मर्दों की गवाही लेने के बाद खड़ग सिंह ने इस किसान से कहा कि तुम्हारा कोई गवाह? तो इसने कहा कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है सिवाय मेरी अपनी जात की, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि ये घोड़ा मेरा है और मैं आपके पास
इसीलिए आया हूँ कि आप हक सच पर फैसला करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, वरना हमारे इलाके में भी एक सरपंच है, लेकिन वो हमेशा अमीर लोगों का साथ देता है क्योंकि वो लालची है। खड़ग सिंह ने दोनों फरीकैन की बातें सुनने और इन गवाह खान की शहादत के बाद कुछ देर के लिए खामोश हो गए। वो जानते थे कि एक मुंसिफ का क्या रुतबा होता है और अगर गलती से भी कहीं गलत फैसला हो गया तो ये बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है और इस नाइंसाफी का खमियाजा मुझे और मेरी आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ेगा। खैर काफी देर सोच विचार के बाद खड़ग सिंह ने बड़ी अदालत में दोनों फरीकैन को मुखातिब करते हुए कहा कि अब रात हो चुकी है और समाअत मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा फैसला आज नहीं बल्कि मैं कल सुनाऊंगा। हर कोई हैरान था कि जब समाअत मुकम्मल हो गई है, गवाहान की शहादतें आ गई हैं, तो फैसला आज सुनाने में क्या हर्ज था। खैर हर कोई अपने अपने घरों को वापस लौट गया। अगले दिन खड़ग सिंह सुबह के वक्त बगैर किसी को बताए अकेले इस कबीला में जा पहुंचे। वहां पर उस कबीला के सरदार को बुलाया गया और इस गरीब किसान को भी बुलवाया गया। इसके बाद खड़ग सिंह ने कहा कि वो घोड़ा हाजिर किया जाए। जब वो घोड़ा हाजिर किया गया तो खड़ग सिंह ने लोगों के हजूम के सामने कहा कि इस घोड़ा की रस्सी को खोल दिया जाए, घोड़ा को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि वो घोड़ा इस गरीब किसान की थान में जा बैठा। खड़ग सिंह दोबारा फिर इस घोड़ा को वापसी उसी जगह पर लाए और इसके सामने पहले सरदार को खड़ा किया, दूसरी जानिब कुछ फासले पर इस किसान को खड़ा किया। वो घोड़ा बार बार इस किसान के पास जाता, जबकि सरदार के बुलाने और प्यार करने के बावजूद भी ये घोड़ा सरदार के पास न आता था, बल्कि किसान के पास जाता और जाकर सर झुका लेता। लोगों समेत जब खड़ग सिंह ने ये मंजर देखा तो इन्होंने तारीखी अल्फाज कहे और कहा कि आज इस धरती पर बसने वाले तमाम हिंदुओं, सिखों और मुसलमान मर्दों के लिए डूब मरने का मकाम है और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने एक घोड़ा की गवाही कबूल कर ली और 30 मर्दों की गवाही रद्द कर दी। आज मुझे ये घोड़ा इन 30 इंसानों मर्दों से ज्यादा रुतबे वाला मालूम हो रहा है, जबकि ये लोग मुझे बेजमीर और अपने अपने मजाहिब के नाम पर स्याह धब्बा और दाग की मानिद दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ना अपनी दुनिया की फिक्र है और ना मरने के बाद की। सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए ये लोग सरदार के लिए झूठी गवाही दे चुके हैं, क्योंकि ये घोड़ा हक पर था और ये 30 आदमी झूठे थे। ये आज तारीखी लिहाज से इंसानियत के लिए एक स्याह दिन के तौर पर जाना जाएगा। आखिर खड़ग सिंह ने अपनी पूरी उम्र लोगों, पंचायतों, अपनी हवेली और इस अदालत में लोगों के फैसले करते गुजार चुके थे। खड़ग सिंह ने इन 30 आदमियों को शर्मिंदा करते हुए पूछा कि तुम लोगों को क्या मजबूरी थी कि तुमने अपने मजाहिब को पीछे रखते हुए इस सरदार की खातिर झूठी गवाही दी। तुम इन 30 झूठे मर्दों ने कहा कि हमें अपने कबीले के सरदार का डर था, ये जालिम है, इसने इस गरीब किसान का घोड़ा चोरी किया था, लेकिन हम जानते थे क्योंकि हम इसकी रियाया हैं और अगर हम इस किसान के खिलाफ गवाही नहीं देंगे और इस सरदार का साथ नहीं देंगे तो ये हमें हमारे घर से बेघर कर देगा, क्योंकि हम इसी की जगह पर, इसी की जमीन पर रियाया के तौर पर बैठे हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। इनकी बातें सुनने के बाद काजी खड़ग सिंह ने इस सरदार को शर्मिंदा किया। फिर इस सरदार के सामने तमाम लोगों से कहा कि तुम किसी की रियाया नहीं हो, तुम आजाद हो, हमेशा हक बात करो, सच बात करो। ये अदालतें किस लिए हैं? आप लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए। जब भी कोई जालिम किसी पर जुल्म करेगा तो खड़ग सिंह की आवाज, इसकी लाठी उस जालिम पर ऐसे बरसेगी कि ना सिर्फ ये बल्कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इन 30 झूठी गवाही देने वालों को 1 साल के लिए कैद में डाला गया, जबकि सरदार को इस घोड़े के साथ एक और घोड़ा जुर्माने के तौर पर इस किसान को देने का कहा गया और साथ में 5 साल की कैद की सजा सुनाई और इलानिया कहा कि जिस किसी को भी अपने काजी, कबीले के सरदार या किसी भी ताकतवर शख्स से कोई शिकवा शिकायत हो या कोई भी मजबूर और गरीब शख्स किसी के जुल्म का शिकार हो तो वो मेरे गरीब खाना, मेरी हवेली या मेरी अदालत में किसी भी वक्त आ सकता है। खड़ग सिंह ने कहा, किसी एक के डर से आप किसी गरीब के खिलाफ खड़े ना हो, वरना अंजाम आपके सामने है। जिन 30 लोगों ने इस सरदार के हक में झूठी गवाही दी वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और आइंदा सारी जिंदगी इनके चेहरे पर ये दाग स्याह धब्बे की तरह उजागर रहेगा। खड़ग सिंह वो काजी थे जो ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरते थे और हक फैसला डंके की चोट पर करते थे। खड़ग सिंह हर वक्त अपनी अदालत या अपनी हवेली पर
लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहता। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किसी से 1 रुपए का भी रवादार नहीं था। हक सच का फैसला करने पर अगर इन्हें कोई किसी भी लिहाज से मिठाई, पैसे या कोई भी जानवर वगैरह देते तो ये साफ इनकार कर देते और साफ कहते थे इसे अपने बच्चों पर खर्च करो और या फिर किसी गरीब, यतीम, मस्कीन पर खर्च कर दो। मुझ पर ये मिठाई, पैसे, जानवर, कपड़े हराम हैं। मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हो तो वो सिर्फ दुआ है। नाज़रीन इकराम, आज हमारा निज़ाम इंसाफ तरीकाकार के चक्कर में इतना फंस गया है कि मजलूम को इंसाफ मिलना दुश्वार और जालिम को जुल्म करना आसान हो गया है। अगर मौजूदा दौर में भी खड़क सिंह आ जाए तो शायद अवाम का अदालतों पर एतमाद फिर से कायम हो जाए और शायद आपको आज भी गली गली, कूचों कूचों ये आवाजें आती सुनाई दें कि खड़क सिंह के खड़क से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छे जुमले और अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन बात है सिर्फ अमल की।